خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین یہ آز ویڈیو کانفرنس ذریعہ ملک کن کئیان حصن مز ریل پروجیکٹن ہز کن کن لاگنس علاوہ کئیان پروجیکٹن دس تل تت جمس مز آز ریل ڈویژن قائم کرنس دس تلنہ آمت یا دوران جمس مز تقریبی ہند ساز کرنا آو تقریب مز یہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایل جی منوج سنہا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو عوامی نمائندوں علاوہ ریل محکم کے ذمہ داروں شرکت کر تج عمر عبداللہ ات موقع پہ ونمت جموں کشیر مز ریل کنیکٹیوٹی تو روڈ کنیکٹیوٹی بڑھاونس مز وزیر اعظم نریندر مودی ذاتی طور کوشش کران یم باپت تم تہند دل ست شکریہ ادا کران اتفاق کی بات ہے اور میرے لیے ذاتی طور خوش قسمتی کہ پہلی حکومت جو میری رہی اس میں شاید آخری بڑا پروگرام جو میرا تھا الیکشن سے پہلے، اور اس حکومت میں الیکشن کے بعد پہلا بڑا پروگرام دونوں ریلوے سے جڑے ہوئے۔ آخری پروگرام اس حکومت میں کٹرا ریلوے اسٹیشن کا ادگھاٹن، اور پہلا بڑا پروگرام اس حکومت میں جموں ڈویژن کا انٹیگریشن، دونوں میں ادھیکشتا جناب نریندر مودی صاحب کی، اور دونوں جموں کشمیر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت۔ جموں ریل ڈویژن کی مانگ جموں کشمیر کے لوگ بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں۔ جب سے ریل کی نے اپنی شروعات جموں میں کی، تب سے لے کے آج تک، چاہے پارلیمنٹ میں، اسمبلی کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے، افسروں کے ذریعے بار بار یہ مانگ کی گئی تھی کہ جموں کو جو اب اپنا ریل ڈویژن جو ہے مل جانا چاہیے، اور آج میں جموں کشمیر کے عوام کے طرف سے مانیہ پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب کا اور ریل منتری جناب ویشنو صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پردھان منتری صاحب کے ہاتھوں اس ریل ڈویژن کا جو ہے شبھ آرمبھ ہوگا۔ اس ریل ڈویژن کی اب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو کچھ دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ سری نگر اور کٹرا کو جو ہے پوری طرح سے ریل سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس ریل کے نیٹ ورک کو بڑھانے کی جو بات کی جا رہی ہے، چاہے رجوری پونچھ کے حوالے سے جموں میں، یا کشمیر میں بارہ مولہ کو کپوارہ کے ساتھ اور باقی جگہوں کے ساتھ جوڑنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، وہ اب اس ڈویژن کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ڈویژن کے یہاں ہونے سے امید کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کا اس پروجیکٹ سے لینا دینا ہوگا، جن لوگوں کے زمینوں کے ذریعے سے یہ پروجیکٹ جائے گا، ان کے ساتھ تال میل بنائے رکھنا زیادہ آسان ہوگا، ان کے ساتھ مشورہ کرنا زیادہ آسان ہوگا، انہیں ترقی میں شامل کرنا جو ہے زیادہ آسان ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی صاحب جموں کشمیر کو کنیکٹیوٹی اور ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے جوڑنے میں بہت زیادہ اس میں کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ریل کے ذریعے سے ہو، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت آج یہ جموں کا ریل ڈویژن ہے، چاہے وہ سڑکوں کے ذریعے سے ہو، جو دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کا کام جو ہے تیزی سے کیا جا رہا ہے، جو جموں سری نگر ہائی وے کو 4 لین مکمل کرنے میں جو تیزی سے کام مکمل کیا جا رہا ہے، جو جموں کشمیر کو لداخ کے ساتھ ٹنل کے ذریعے، زیڈ موڈ ٹنل اور زوجیلا ٹنل کے ذریعے، اور جو ایئرپورٹ ایکسپینشن کا کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ جموں پہ تو کام شروع ہو چکا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ سری نگر پہ بھی کام جلدی سے شروع ہوگا۔ ان سب چیزوں کا یہی فائدہ ہمیں ہوگا کہ جموں کشمیر کی کنیکٹیوٹی اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جو ہے، اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں اور زیادہ آسانی ہوگی، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان سب چیزوں پہ جو ہے جلدی کام مکمل ہوگا۔ لیکن آج کے موقع پہ میں اپنے طرف سے جموں کشمیر کے عوام کے طرف سے مانیہ پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے اس ڈویژن کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سری نگر کس پاندریٹن علاقس مز یہ رات شام پت اکہ عیالک 5 نفر دم پھٹ سپدن جاں بحق سپد یت مز 3 شر تہ شامل تت وزیر صحت سکینہ یتون معاملس حوالہ افسوسک اظہار کران ونمت لوکن پزِ سفوکیشنس حوالہ خاص خیال تھاون یت زن یہ واقع برہ کن پیش ین۔ منسٹر کیا کرے گا، یہ تو ایک بدقسمتی کا انسیڈنٹ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے۔
क्योंकि एक घर के 5 फर्द जो बेचारे जिनको सफोकेशन की वजह से जिनकी मौत हो गई। मैं तो लोगों से गुजारिश करती हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि घरों में वेंटिलेशन, कमरों में जब बैठे वेंटिलेशन रखने की कोशिश करें। और ये गैस बुखारी जो रखते हैं घरों में अंदर, फिर खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इससे काफी जो अंदर जो है ऑक्सीजन वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन में इंसान की मौत हो जाती है। इसके लिए प्रिकॉशंस की जरूरत है, वो लोगों को खुद लेने पड़ेंगे और लोगों को उसके लिए मुझे लगता है खुद समझना चाहिए। वेंटिलेशन कमरों के अंदर बहुत वजीर सेहत सकीना यतून आज जिले शुपियन दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मुख्तलिफ महकमन हंद काम कार जायजा हो तत तिमो अफसरन वोनमुत ज तिम गसन फरज सान अंजाम दिन युद्ध जन आम लुकन वंदकालस दौरान मुश्किल वेतरीन पेन यल जन तिमो अत मौकस पे वोन सरकार तरफ आम लुकन राहत वातनावनस हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलना आमुत युद्ध जन लूकन वंदकालस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरीन हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन दौरे करनस दौरान सकीना यतुवन वोनमुत महकमा सेहत बुनियादी ढांचे मजबूत बनावनस हवाले सरकार तरफ कया कदम तुलना आमुत युद्ध जन हस्पताल मज वाल मरीजन मुश्किल वेतरीन पेन दौरस दौरान तिमन हमरा तमाम अवामी नुमाइंदे ते तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क तो है काफी कुछ, अकाउंटेबिलिटी जिसकी कमी थी आज वो लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है। डॉक्टर्स हो चाहे उनका पैरामेडिकल स्टाफ हो जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारे अपने भाई हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैंने बार बार कहा है, आज फिर कहूंगी कि पेशेंट केयर में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जहां तक पेशेंट की बात होगी, जितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक पेशेंटों को केयर करना चाहिए। और जो मेडिसिन हॉस्पिटलों में मिलनी चाहिए, जो अवेलेबिलिटी है, लगभग सारे मेडिसिन हॉस्पिटलों में अवेलेबल होते हैं, वो बीमारों को वहां पे मिल जानी चाहिए। बाकी यहाँ आने का मकसद था आज, क्योंकि बर्फबारी हुई है। पहले हम पुलवामा गए, आज यहाँ शुपयान आए हुए हैं। अभी मेरे साथी दो ऑनरेबल एमएलए साहब, एमएलए जानपोरा, एमएलए राजपोरा, मोहिद्दीन साहब और शौकत साहब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, डीसी साहब, उनसे मेरी बात हुई, मीटिंग हुई पहले, ताकि पहले उनसे जानकारी ली कि डिस्ट्रिक्ट में रोड कनेक्टिविटी कितनी हुई है अभी तक, पावर सेक्टर में कितना जो है वो रेस्टोर हो चुका है, पीएचई में कहीं दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ऑफिसर्स की टीम वो भी अच्छा काम करते हैं। ऑनरेबल जो एमएलए साहिबान हैं वो भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं, जो हमारे हाथ में है उसको हम भी देख रहे हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुपरविजन कर रहे हैं। पिछली बार वो खुद बर्फबारी में सारा कुछ मॉनिटर कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह आने का मकसद यही था कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के सामने हम जवाब दें। वादी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये आवार होने तरफ लूकन मज खौफ दहशत पैदा कर्मुत तत बडगमिस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये आवार होने तरफ 18 खोत ज्यादा लोग जख्मी कर जख्मी लूक ये इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई तत जिम्मेदारों तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज यथन मामलन पे रोट लागनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने इन। आधा घंटा पहले यहाँ 17 पेशेंट्स आ गए डॉग बाइट के, वो हमने सारे मैनेज यहाँ कर लिए। जो भी हमारे पास फैसिलिटीज थे, ARV, टेटनस एंड इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। सबको ARV दे दिया गया, टेटनस दे दिया गया और 4 पेशेंट्स को हमने इम्यूनोग्लोबिन दे दिया। लेकिन उनमें से एक पेशेंट उसको हमने रेफर कर दिया फॉर सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन के लिए, फॉर प्लास्टिक सर्जरी के लिए। नहीं, चैलेंज की ये बात है कि जो ये डॉग बाइट्स आते हैं तो ऑलरेडी वो पैनिक में होते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं।
उनमें से एक की जो इंजरी थी वो थोड़ी सीवियर थी, उसको हमने सुपर स्पेशलिस्ट, बाकी सारे स्टेबल है और वो है मैनेज। ऋषिपुरा ऊंटपुर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में साफ चनाब वैसे हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लोग मुश्किल मज हन आये। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने yin। ऋषिपुरा अवंतीपुरा जो ऋषिपुरा उल्लर के नाम से जाना जाता है, उसी में रहते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट हमारा पुलवामा आता है। तो हम पिछले कई 2 सालों से अब सफ़र कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हमारी जो पहली स्कीम थी वो ऋषिपुरा से चल रही थी, तो हमारी बदकिस्मती समझे, हमारे गुनाहों की बदकिस्मती या हमारी बदकिस्मती समझिए आप कि हमारे यहाँ पे एक सोकाल्ड नाम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया गया, लेकिन तब से हमने बिजली जो पानी है उसका नाम तक ही नहीं देखा है, पानी को देखा भी नहीं है। और फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे हमें बस एक गंदा पानी मिलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। अब कभी पहले कुछ घंटों के लिए मिलता था, अब दिन में 15 मिनट के लिए ही मिलता है। पानी के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो लोग, हमारे भाई बहनें माएँ अब सफ़र कर रही है, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदा पानी ही आ रहा था, उसकी वजह से यहाँ हेपेटाइटिस फैल गया है। फिर हमने कई बार DC साहिबान जो हमारे हैं या PH के जो भी बड़े हैं, एक्जन AE, उनसे बात की तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने कई दफ़ा उन साहिबान, अभी जो हाल ही की बात करेंगे तो विंटर प्रेडिक्शन हुई थी स्नोफॉल की, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इन्हीं दिनों में हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ ऋषिपुरा में बना है वो बंद पड़ा है, ख़राब हो गया है। तो हमने JE साहब को कॉल किया बार बार, तो वो एक बस कॉल नहीं उठा रहे हैं, बोदर ही नहीं कर रहे हैं कॉल उठाना। हमारा मसला एक था, थोड़ा सा उन्होंने बोला कि JCB का MCB का एक फॉल्ट आया है फिल्ट्रेशन प्लांट में, लेकिन वो भी ठीक नहीं हुआ। अब हमने वहाँ जाके उनसे बात की तो वो जो मैकेनिकल वाले हैं वो सिविल वालों पे अपना इल्ज़ाम थोप रहे हैं, सिविल वाले लाइनमैनों पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। जहाँ तक अगर लाइनमैन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो बेचारे आ रहे हैं। मसला ये है कि वहाँ पे पानी होता ही नहीं है। हम वहाँ जाते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट पे, वो बोलते हैं कि यहाँ चढ़ा ही नहीं है पानी। तो अब हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी बात है, हमारी गुजारिश है, ये DC साहिबान और जो मुतल्लिका हुकाम है उन तक पहुँचे, हमारा जो ये मसला है इसका इजाला हो जाए। ऋषिपुरा रोजान यहां तहसील अवंतीपोरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा आब PH स्कीम फिल्ट्रेशन प्लांट आमुत तक आब सह तूत ज्यादा गंद तमिच त्रेश हेकान चेत कहें वन आब फिर लगान बुत छलनस बान छलनस गरकन तम खुद सह आब कहें गोडन घंटस आब या 2 घंटन आब आज टोटल 10 मिनटन या 5 मिनटन आब शीन वो वगलान अमि सह वजू कर या बुत छलान या गर बान छलान सह आब कहें वन पतिम 2-3 दह गई तीस सख्ती वन शीन ये काड़न बनान आब यह इस्तेमाल कर वो कर लाइन मैन फोन तम वन यह मैकेनिकल वाले जिम्मेदारी मैकेनिकल वाले कर फोन तम वन लाइन वाले जिम्मेदारी अस वन तो अस कर मैकेनिकल वाले फोन दान यमिस करो एक्जनस फोन या बाकी करो फोन लिहाजा कर तुंद वसादत तमाम गुजारिश ये तुम पकन सोन कत ब्रोट अस करो आबुक मसला हल बाकी वसलम। दुरुस्त मुल्क सान आवाज़ जम्मू कश्मीर मज गुरपुरब त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनाने यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन गुरुद्वारन मज आज सुबह पे वसद रस वुचन आये। वादी मज सपज अमे हवाले सारवी खोत बड़ तकरीब छठी पातशाही रहनवारी गुरुद्वारस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन हाजिरी दिज ये जन अत मौकस पे अत लंगर तो कीर्तन एहतमाम करने आमुत यपर सिख फिरक सत वाबस्त लूकों तरफ वन आमुत यह दह माय मोहब्बत तो भाईचारुक पैगाम दिवान तो अस पज रलित मिलित प्रत कह त्यौहार मनावन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सारे पूरा विश्व हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सरबंसदानी, जिन्होंने अपना पूरा सरबंस पिता से लेकर बच्चों तक और सिंह सिंगड़ियाँ पूरे पंथ के लिए वार दिए, मनुष्यता के लिए वार दिए। और आज हम उनका प्रकाश पुरब, जिनका जन्म की 22 दिसंबर 1666 में पटना जो बिहार में वहाँ पे हुआ था, सो उसी सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा में
और पूरे विश्व में आज मनाया जाता है। और जैसे आपने पूछा कि मैं जो सवाल आपने पूछा कि मैसेज क्या है, जो गुरु साहिबान ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक हमें जो मैसेज दिया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग पिया कौन भले को मंदे, कि इस जहान में जो भी आया है वो उस अकाल पुरख का, परवरदिगार का, जिसको हम अल्लाह ताला भी कहेंगे, उनका भेजा हुआ है। और जो आगे जो आए हैं वो सारे उनके मैसेंजर्स हैं, चाहे वो पीर ओलिया भगवान कहें, गुरु कहें, जो भी कहें, वो उस ऊपर वाले के मैसेंजर्स। और उन्होंने सबको, जो मनुष्य हैं, जो सृष्टि है, सबको एक साथ रहने की बात की है। तो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 7 उसूल उनके थे कि पहले तो किसी औरत पे वार नहीं करना है, किसी बच्चे पे वार नहीं करना है, जो हमारी अगर कोई दर्ज आपके गुरुद्वारे या मस्जिद में आया है उस पे वार नहीं करना है, और पीछे से वार नहीं करना है। ये उनका उसूल था। और उन्होंने 3-4 जंगें लड़ी हैं, उसमें हासिल की है, उसमें जंग प्राप्त की है, फतेह। तो आज हम यही संदेश देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यपर अनंतनागस मज आज गुरुपुर किस मौकस पे गुरुद्वारन मज रौनक वुचन आम जन सिख फिरकस सत वबस्त लूकन हुंद बोड़ तादादन गुरुद्वारन मज हाजिरी दिच। यथ दौरान गुरुद्वार कमेटी तरफ मुख्तलिफ जायन पे लंगर तो कीर्तन एहतमाम करना आमुद। मैं आपकी साथ से आपको आज इस महान दिवस पर ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये जो दिवस है हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आज जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की साथ संगत ये दिन जो है ये हमारे हुटमरा गुरु तेग बहादुर सिंह सभा हुटमरा में ये दिन बड़े शान और शौकत से मनाते आ रहे हैं। आज हमारे तमाम सिख भाई मदन के मदन निवासी, शिवपुरा निवासी, नंबल निवासी, बहुत सारे पालपुरा निवासी, चिड़सीपुर निवासी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपकी साथ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें बिजली, पानी और रोड क्लियरेंस फराहम किया। बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। हपर शुमाली हंदिस जिले वरमुल कन गुरुद्वारन मज आज सुबह पे रौनक वुचन आम जन गुरु पूर्व किस मौकस पे इंतजामिया तरफ गुरुद्वारन मज मुकम्मल इंतजाम कर आमुद। यपर गुरु पूर्व किस मौकस पे लूको तरफ वन आमुद यह दोह माय मोहब्बत तो भाईचार पैगाम दिवान तो अजक दोह जम्मू कशीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत खसूसी मंग कर आमुद। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर वरमुल अत प्रोग्रामस में शिरकत कर्म। यथ दौरान तमो वोन जिले इंतजामिया तरफ गोड़े यह त्यौहार मद्देनजर थवित माकूल इंतजाम करना आमुत युत जन गुरुद्वारन मज इन वालन लूकन कुन किस्मक मुश्किल व्यतरन पेन। आज हमारे 10th गुरु गोबिंद सिंह का बर्थडे था, तो उन्होंने 4 अपने बेटे शहीद किए थे और आज यहाँ लंगर भी है। आज यहाँ मुस्लिम और पंडित कम्युनिटी के भी बहुत लोग आए हैं। यहाँ पे लंगर भी है, इधर पकोड़े और चाय भी मिल रही है। ये हर साल की तरह इस साल भी साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का, जो कि कश्मीर वैली में हर जगह साहिब का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। हर साल ये पूर्व जो होता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब, जो कि जहाँ पे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख रहता है सारी दुनिया में, वहाँ पे इस पर्व को बड़ी धूमधाम से, बड़ी प्यार और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पूरा बोला जाएगा। ये हमारे 9th गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, जिन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया सिखिज़म को बनाने के लिए। इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 में जो है पटना साहिब बिहार में हुआ था, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। पहले
सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे जो 10वें गुरु साहिब हैं, जो खालसा पंथ के फाउंडर हैं, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब पातशाह जी का प्रकाश उत्सव है, मीन्स कि उनका बर्थडे है। आज ही के दिन 1666 में बिहार के अंदर पटना साहिब, जहाँ पे अभी हमारा तख्त साहिब है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो उसी सिलसिले में इस प्रकाश पर्व को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारी यहाँ की लोकल संगत के सहयोग के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तावन था, प्रकाश पर्व के इस संबंध में एक कीर्तन समागम रखा गया है। पहले अखंड पाठ साहब जी परसों प्रारंभ करवाए गए थे। आज उनके पोह के बाद ये कीर्तन दरबार शुरू हुआ है, जिसमें लोकल पूरी यहाँ ज़िला की सिख संगत ने हिस्सा लिया है, सभी आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा कोऑपरेशन था। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जो हमारे फाउंडर हैं खालसा पंथ के, जिन्होंने ये पंथ बनाया, हमारे दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व भी हम यहाँ मना रहे हैं। ये प्रकाश पर्व इस पूरे जगत में मनाया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज बारामूला में जो ये भी एक जो जगह जहाँ पर आप आए हैं, यहाँ छठी पातशाह श्री हरगोबिंद जी जो है वो यहाँ आए हैं। तो इस पावन स्थान पे आज हम उनका ये प्रकाश पर्व मना। आप हमारे जितने भी आप हमारे आज यहाँ पे मीडिया के साथ ही आपके थ्रू हमारे जितनी भी सिख संगत है जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उन सबको मैं गुरु गोविंद सिंह जी जयंती जो उनका प्रकाश पर्व यहाँ हिस्टोरिक जो छठी पातशाही गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है, उन सबको मैं उसकी शुभकामनाएं दिया जाता हूँ। तो आपने देखा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में पूरे वैली में सबसे सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है। तो अगर बारामूला हो, हमारे रफियाबाद हो, हर जगह पे बड़े अच्छे से मनाया जा रहा है। हमारे अफसर साहिबान जा रहे हैं और इंश्योर करें कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हों, बिजली की हो, पानी को, सब मुहैया कराया जाए। आपको पता है कि अभी इंक्लेमेंट वेदर का भी टाइम चल रहा है, तो उसके बावजूद हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी जयंती के समय कोई दिक्कत ना आए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ आज श्रीनगरस मज रोड सेफ्टी हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज RTO कश्मीर सलाह महकम के दोमो जिम्मेदारों तो ट्रैफिक महकम के अहदेदारों शिरकत कर। अत मौके पे रोड सेफ्टी हंदन कईन मामलन हवाले कथन दल दिन आव। तत RTO कश्मीर कत करान वोनमुत ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस मज आसानी सपदे। कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अराउंड 11 पर जो पूरे दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वही कंट्रीब्यूट अराउंड 11% हिंदुस्तान में ही होते हैं। और कश्मीर के भी पीछे नहीं है। अराउंड 1000 लोग जो ट्रैफिक हादसात में उनकी मौत हो जाती है हर साल। तो हालांकि हमारे पास व्हीकल्स की अगर परसेंटेज देखें, ओनली 1% ऑफ द व्हीकल्स जो है पूरे वर्ल्ड की दैट आर इन इंडिया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक यहाँ पे ट्रेनर्स का प्रोग्राम रखा है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि जो 70% हम जब देखते हैं, जब फिगर्स की बात करते हैं, तो अराउंड 70% जो इंसिडेंट्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेग्लिजेंस। चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, हेलमेट न लगाना हो, हम सीट बेल्ट्स न लगाए, तो ये सारी रीजंस हैं जिनसे ट्रैफिक के हादसा जो है होते हैं। तो उसी सिलसिले में ये हमारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, उनके जो ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। काम तो वो कर रहे हैं, तो उसमें शिद्दत लाने के लिए, उनको बेटर इक्विप करने के लिए ये आज हमने 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया है, टैगोर हॉल में यहाँ इनेकाद किया है। और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करेंगे। और इससे क्या होगा, ये जो सारे काम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, अल्टीमेटली जो मैटर करते हैं, जो हमारे लोग हैं जो सड़कों पे हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बेटर इक्विप्ड हो और वो ट्रैफिक वायलेशन। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।